ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اوبیسلی بہت سے گھر ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو ڈومیسٹک سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر واقعی کسی کا گزارا نہیں. میری امی یا ہم لوگ تو خواتین خاص طور پہ اگر گھر میں کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی کچھ کہہ دو لیکن ڈومیسٹک سٹاف کو کچھ نہ کہو, اگر وہ چلے گئے تو ہم بڑی پریشانی میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک سٹاف رکھتے ہیں یو ہیو ٹو چیک ایوری تھنگ. کہاں سے آ رہا ہے, گاؤں کون سا ہے, کدھر رہتا ہے, کیا فیملی ہے. اس کے لیے ہمیں زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں, سارا آپ کے پاس ان کی انفارمیشن ہونا چاہیے. ایون دین کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم غتائی کر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. میرا بالکل ایسا نہیں ہے کہنا کہ ہم کو ٹارگٹ کریں کسی کو, ظاہر ہے آپ کو ان کی عزت بھی کرنی چاہیے, آپ کا کام کریں, لیکن آپ کو ایک ڈبل چیک ضرور چاہیے ہوتا ہے اپنے گھر میں ڈومیسٹک اسٹافنگ کے. اسی طرح آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے ایک ایپ بنائی ہے ڈبل چیک کے نام سے. اینڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری ان کی ہسٹری جو ہے وہ ایک ایپ میں آ جاتی ہے, ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. اینڈ یو کین کیپ چیک اینڈ بیلنس کہ کہاں وہ جا رہے ہیں یا ان کی کیا چیزیں ہیں, وہ کدھر سے بیک گراؤنڈ ہے ان کا, کون ان سے ملنے آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے ہمارے سیگمنٹ واٹس ٹوسٹنگ میں. میں آپ کو سب سے پہلے ملواتی ہوئی چلوں طاہا قصت سے, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ڈبل چیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید علی حیدر, ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ایٹ ڈبل چیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. اینڈ سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی دس ایپ. میں جب یہ پورا کل دیکھ رہی تھی میں نے کہا مطلب کیا دنیا میں چیزیں آ جاتی ہیں, اور واقعی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے یہی سوچ کے بنائی ہوگی کہ بھائی یہ سب پرابلمس ہوتی ہیں. سو ایک ذرا ہمیں واک تھرو دیں کہ یہ کس طرح پلان ہوا اور کیا کیا آپ لوگوں نے. تو جسٹ ایک گیو یو این آئیڈیا, ہم نا یہ کام کر رہے ہیں فار بیٹر پارٹ آف اے ڈیکیڈ جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں, بٹ ہم کارپوریٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وی ریئلائز کہ کارپوریٹس میں تو چل نہیں, سب بیک گراؤنڈ چیک کرواتے ہیں امپلائیز وغیرہ کے, بٹ واٹ اباؤٹ دا ڈومیسٹک اسٹاف. جی ڈومیسٹک اسٹاف ایک مسنگ ایلیمنٹ ہمیں دکھا تھا. بالکل, اینڈ وہ سب سے امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. گھر میں کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے, گھر میں جو ہے آپ گھر کی خیال رکھنے کے لیے جو ہے آپ ڈومیسٹک اسٹاف کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی بیک گراؤنڈ چیک کوئی نہیں کرتا اس کا. تو ہم نے سوچا کہ ایک پراپر کمپریہنسو سا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے, جس میں نہ صرف کہ بھائی اس کا کرمنل ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے, یا وہ جیل جا چکے ہیں کہ نہیں جا چکے, ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ہیں ٹیررزم کی, آپ کا سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے کہیں بھاگا ہوا تو نہیں ہے فار ایگزامپل. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں. اینڈ CNIC اصلی ہوتے ہیں, نقلی ہوتے ہیں. نقلی CNIC آپ نیوز پیپروں میں ہی پڑھتے ہیں. سو ٹھیک ہے. اچھا, اس کو رجسٹر کیسے کرنا ہوتا ہے؟ لائک اگر آپ کوئی آ گیا, اب یہ ایپ کا تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, لیکن وہ کیسے اس میں آئے گا؟ Look, so the idea is, I'll just start by saying the problem with Pakistan mainly has always been accessibility of information. جی. ہم لوگوں کو we do want to do these due diligence procedures. ہمارے پاس آج تک کبھی طریقہ آیا نہیں کچھ کرنے کا. سو ہم لوگ what we do is ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یار فلانے بندہ اگر آتا تو ہم کہتے ہیں یار کس کی ریفرنس سے آیا. That's the best we can do. There is nothing else. But the truth of the matter is کہ majority of the time جو ریفرنس سے آ رہے ہوتے ہیں those aren't really references. وہ کسی کے چائے کے دادا کے بیٹے کا, بھائی کا, چچے کے گاؤں سے کوئی آ رہا ہے باجی اس کو رکھوا رہا ہے. Exactly. So now the idea is کہ ہم نے, so again as Mr. Taha mentioned, we've been doing this for a better part of the decade, and the idea is کہ using certain information such as their CNIC numbers, such as their name, their father name, date of birth, these factors allow us to run certain searches. ٹھیک ہے. Now we have a very broad database جس کے اندر we can run, we have millions of entries of people from anywhere between Punjab police to Sindh police to NAPTA, NECRA, CIE, FIA. There's about 80 agencies. I think Taha can give you a better idea. I think 80 agencies تو صرف local ہیں. Then we have access to other data that gets published. اچھا, یہ سارا جو ہے open source data ہے. None of it is criminal verification کے علاوہ اور کیا verifications ہیں؟
क्रिमिनल तो एक एलिमेंट आपने ये तो एक है, ये तो करवाना ही है पता कि गार्ड कहाँ से आया. हमारी गली में 2 गार्ड बैठते थे, अल्लाह माफ करे, उनको तो 2 चपेड़े मार के वैसे ही लेके कुछ चला गया. वो गार्ड के काबिल ही नहीं थे. मैं तो गली में जब हम लेन में शिफ्ट हुए, हमने कहा इन गार्ड को तो वो ऐसे पड़े होते थे, इनको तो 2 चपेड़े मैं मार के कुछ ले जाऊं. Right. So speaking of what you're saying, this is where things like employment check come into play. जी, ठीक है. Employment check ये होता है कि अगर there is a person who is claiming कि जी मैं फलाना कंपनी में काम करता था या फलाना बिजनेस के अंदर काम करता था, तो फिर फलाने घर में काम करता था, फलाना घर पे काम करता था. The idea is कि what verification can we do? So what we prefer is कि कोई document हो, that document gets verified because we try to work as much on evidence. हम सर्वेंट डोमेस्टिक स्टाफ के लिए जो है हम रेफरेंस चेक्स भी करते हैं. हम क्या कहते हैं कि यार आप बता दें आप किसके वहाँ काम करते थे, आप किसी के वहाँ, वो कहते हैं हम तो जो है इस फलानी स्ट्रीट पे जो है फलाने DHA में काम करते थे. ठीक है. अब वो ठीक है, अब आप फ़ोन नंबर दे दें, हम मालूम कर लेंगे. हम एज अ थर्ड पार्टी वेरीफाई करके आपको बताते हैं. मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ एक चीज़ में, प्लीज़ आई वांट यू टू क्लैरिफाई दैट. एक मुलाजिम अगर मेरे थ्रू जा रहा है कहीं, वो आप तक कैसे पहुंचा, वो ये मैं जानना. सो एक हमारी ऐप है double-check.pk. ठीक है, वो आप जॉब के लिए आ रहा है तो उस पे अप्लाई करें. नहीं, जॉब जो है आप खुद ले लें. हमने जानबूझ के अपने आप को जो है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाया है. हम जॉब लगवाते नहीं है, बिकॉज अगर हम जॉब लगवा के आपको वेरीफाई करेंगे तो ये होता है कि यार ये तो इनका तो कॉन्फ्लिक्ट है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वी ओनली डू बैकग्राउंड स्क्रीनिंग. ठीक है. अच्छा, आप सपोज आपने मुलाजिम हायर किया, तो मैं डबल चेक खोलें एंड आप उसमें जो है आप उस बंदे की डिटेल्स डाल दें एंड यू सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वुड यू वांट. योर रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी टू चेक. करेक्ट. वेरी गुड. अच्छा ठीक है, इस तरह चेक हो जाता है. कोई ऐसे कभी केसेस हुए कि आप लोगों ने कोई वैसे पकड़ा हो कि ये सही बंदा नहीं है? आपको मैं एग्जांपल एक देता हूँ. प्लीज You go first. वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो मैं सिक्योरिटी गार्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर किया था. ठीक है. अच्छा, वो सिक्योरिटी हायर किया तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज का एक होता है कि यार बंदा वापस गांव चले आता है, कुछ भी होता है, रिप्लेस कर देते हैं. रिप्लेसमेंट आ गया, हमने कहा 1 सेकेंड हमें ज़रा इसका बैकग्राउंड चेक करने दें. विदिन 2 आवर्स वी न्यू कि ही वॉज वांटेड मैन बाय द पंजाब पुलिस फॉर कैटल थेफ्ट. तो हमारे पास इस तरह की लिस्ट्स हैं. अच्छा. और ये अगेन पब्लिश होती है पाकिस्तान में, बट नॉन सर्चेबल डेटाबेस में होती है कि आप सर्च नहीं कर सकते हैं. और इतनी सारी होती हैं कि एक बंदा जो है ना उसको सर्च करने में मुश्किल होता है. बिल्कुल. सो वी हैव कंसोलिडेटेड ऑल ऑफ दैट. बट डोंट यू थिंक कि ये हम बहुत, मैं ऐसे इंटरव्यूज करती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग अपने एंड पे कम्युनिटी वाइज एंड दे आर डूइंग दीज थिंग्स. डोंट यू थिंक ये गवर्नमेंट का काम है? You want to take this or should I? You go ahead. You go for it. Look, government की काम बहुत ज़्यादा है. And we would all prefer कि things do work the way they do, but we're a very young country. Yeah. A lot of our systems are still very क्या कहते हैं, in the development process. अभी तक infancy. I mean, you think about America, it's 300-400 years old country, right? So उनके systems develop होने में बड़ा time लगा था. There's a reason why there was the phrase Wild Wild West comes into play, because for the first 100-200 years तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं. Now again, the problem is, number one, even if the data exists, it's not accessible to the people. And the second thing is कि if it is accessible to the people, there is no convenience around it. I mean, एक अवाम जो कि पुलिस को कॉल करने से डरती है कि यार हम रिपोर्ट करेंगे उल्टा हमें हरास करने शुरू हो जाएंगे. So you need to create a buffer between that, and you need to have these things. It's one of the reasons why CPLC has done so well as well. It's a citizens liaison. So we're just kind of creating a buffer where people can access the information in more easy. And I'd like to add something. Ji, please. So globally as well, background checks are done by a third party. The government provides the data. जी. ठीक है, whether आप US ले लें, आप UK ले लें, Europe ले लें, there are background screening organizations available. ठीक है. अच्छा, why a third party? Because again conflict of interest avoid हो जाता है. बंदा कहेगा आपने जो है मेरा बैकग्राउंड चेक खुद किया है तो मतलब you didn't want me to work with you. या तो थर्ड पार्टी क्या करती है, जैसे हम लोग डेटा देते हैं, देख के हम कहते हैं ये देखें ये डेटा है, इसके बेसिस के ऊपर जो है हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन की है. सही.
So we provide accurate, up-to-date information. बिल्कुल ठीक. डबल चेक एक ऐप है जिस पे आप जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप कोई डोमेस्टिक स्टाफ हायर कर रहे होते हैं. घरेलू हमारे बड़े ऐसे मसले होते हैं कि अगर मासी छुट्टी जा रही है तो जी उन्होंने कहा जी मासी की जगह कोई और मासी आ जाए, गली में कोई मासी आती है. अब ज़रूरी होता है कि हम लेन में अपनी एक दूसरे का, जैसे हमारी जो स्ट्रीट है, हम सारी जो ख़वातीन हैं, एक मर्द हज़रात एक ग्रुप बना हुआ है जो स्ट्रीट का एक ग्रुप है जिसमें कोई भी ऐसी कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है, इमीडिएटली उस ग्रुप में आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि किसी के घर के बाहर कोई घूम रहा है या कुछ हो रहा है. तो ये चीज़ें हम कनेक्टेड रहते हैं और पता चल जाती है. लेकिन सिर्फ स्ट्रीट की हद तक हमने अपने 2-3 स्ट्रीट्स को इन्वॉल्व किया हुआ है. बट ज़्यादातर ये होता है कि अगर छुट्टी कोई चला गया तो कैसे काम होगा, तो हमें तो होता है कि भाई मासी रूठ के ना जाए या छुट्टी ना जाए. तो इसके लिए रेफरेंस हम करते हैं. लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि एक ऐप है जहाँ पे आप जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं. यू जस्ट हैव टू गो एंड टेल देम, एक उनकी डिटेल्स देनी होती हैं, वो आपको सारी वेरिफिकेशन करके देते हैं डबल चेक वाले. अच्छा जी, ये तो डोमेस्टिक स्टाफ की वेरिफिकेशन हो रही है. तो अगर दूल्हा की वेरिफिकेशन करानी है तो फिर क्या करें? तो कमिंग सून टू द ऐप, कमिंग सून वाली की बात है. दूल्हा की वेरिफिकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं. मैट्रिमोनियल चेक्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट. इट्स ए प्रोसेस. उसके साथ साथ नहीं दुल्हन की भी, किसी की भी. आप इनलॉज की कर लें. चले इनलॉज की बहुत जरूरी है. लड़का लड़की तो खुश रहते हैं, इनलॉज की पहले वेरिफिकेशन करें कि इनके दिमागों में क्या है. बट इन ऑल फेयरनेस जो है, दिस इज समथिंग जो रिक्वायर्ड होती है. अच्छा, लोग क्या करते हैं कि खुद जो है अपने सर पे ले लेते हैं, या उन दूल्हा या दुल्हन के ऑफिस को विजिट करते हैं, उसके बॉसेस से बात करते हैं, वो एक इंटरप्शन वहाँ होता है. तो ये सब जो है हम प्रोसेस एक लेके आ रहे हैं. उसके साथ साथ हम लेके आ रहे हैं जो बहुत डिफरेंट होगा, इज समथिंग कॉल्ड टेनेंसी चेक. अच्छा, मतलब आप जब टेनेंट हायर करते लेके आते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, आपको थोड़ी पता है कि कहाँ से आता है. वो तो आपका रियल एस्टेट एजेंट आता है, कहता है सर ये आ गया, ले लें इसको, रख लें इनको. सर लेकिन ये तो आप लोग तो यहाँ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है. ये पूरी दुनिया में होता है. आप तो किसी मुल्क में एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन करानी होती है, बताना होता है. एक यहीं पे थोड़ा है और ये अच्छी चीज़ है. अच्छा, इसमें टेनेंट्स भी होंगे? फिर इसमें टेनेंट्स भी आ जाएंगे. ठीक है. सो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड कर रहे हैं. फिर ये एक नया इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है कि द कंपनी में बी अ लिटिल बिट ओल्डर, बट इनिशिएटिव थोड़ा सा नया है. अच्छा, हमारा बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें फिजल आउट हो जाती हैं कि एक ऐप बनती है और वो चली जाती है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? कि इतना आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉमिसिंग? लुक, जहाँ तक हमें लग रहा है ये एक ऐसी नेसेसिटी और एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो कि वक्त के साथ सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. होता क्या है, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस. आजकल पुराने ज़माने के जो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते थे या नॉटी हरकतें करते थे, वो बहुत भोंडी हरकतें करते थे. जी बिल्कुल. आजकल पीपल हैव बिकम अ लॉट मोर अलर्ट. इवन क्रिमिनल्स, वो ज़्यादा चालाक हो गए हैं, ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, हमसे ज़्यादा चालाक हैं. यस. सो द आइडिया इज़ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, जैसे जैसे इनके क्राइम्स की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो तरीके होते हैं वो बदलते हैं, यू ऑल्सो नीड टू देन enhance your security and of course we're talking about यहाँ पर बात फैमिली की आ रही है. बिल्कुल. आप जहाँ पर आपके बच्चों की बात आती है या आपके पेरेंट्स की बात आती है, इवन अपनी बात आती है, आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी की बात आती है, यू कांट टेक अ रिस्क ऑन एनीवन कमिंग इनटू योर हाउस होल्ड. आपको अपने घर को जो है प्रोटेक्ट करना होता है हर तरीके से. सो कम्युनिटी ड्रिवन जो आप हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक. हाँ जी. सो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे ना होता क्या है कि अगर लेट से कोई बंदा, कोई ज़ाती, अगर लेट से डोमेस्टिक स्टाफ है, वो डोमेस्टिक स्टाफ किसी किस्म का छोटा मोटा क्राइम कर लेता है ना, तो हम लोग एट टाइम्स क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार क्या बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करेंगे, क्या पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, चल यार इसकी तनख्वाह से काट लो पैसे और उसको फारिग कर दो. ये हमारा जो कल्चर जो है इज़ वेरी वेरी कम्युनिटी बेस्ड, इन्होंने बोला. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ एनीबडी वांट्स टू रजिस्टर? कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़रा उसके ऐप के बारे में भी थोड़ा. रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज़ फ्री ऑब्वियसली, बट डिपेंडिंग ऑन जो चेक्स आपको रिक्वायर्ड हैं जी, उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं. ठीक है. सो इट कुड बी हमने कोशिश की हुई है कि उसको बहुत हम लोग ने प्राइस रीजनेबल रखा हुआ है. एंड फॉर मे बी 1,000-2,000 रुपीज़ आप सारे चेक्स वगैरह करवा सकते हैं, एटलीस्ट द इम्पॉर्टेंट वंस. बट
जस्ट जो अगेन सो द आइडिया इज कि हम लोग तो कहते हैं कि भाई डाउनलोड तो फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड Download is आप अपना डेटा जो है उस पर स्टोर कर लें। आप एम्प्लॉय आपको CNIC देता है, आपके डोमेस्टिक स्टाफ आप उस पर रख दें, एटलीस्ट भले अपना have to send the NIC की जो बस स्कैन copy, करके correct. करना है या जी जो हाँ, भी। करेक्ट। अच्छा, वन थिंग दैट आई डू वांट टू मेंशन, Please. जो फ्यूचर के अंदर हमारा एक प्लान है, जो हमारी कम्युनिटी वाली बात चल रही थी, एंड ताहा इज गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट, वो ये है कि बहुत सारे हमारे जो पेटी क्राइम्स होते हैं ना, वो अनरिपोर्टेड होते हैं। जी जी। तो नहीं अगर करते एक लोग। बंदा एक घर से चोरी करे, वो जाके दूसरे घर से भी चोरी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस वाले ने भी पुलिस को नहीं रिपोर्ट किया, वो भी पुलिस को नहीं रिपोर्ट करेगा, वो तीसरे घर चला जाएगा। इतनी सही आपने ये बात की है। तो ये एक बड़ा जो है ना पाकिस्तानी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, जो साउथ एशिया के अंदर ही पाया जाता है। तो उसके लिए नाउ अब हम लोग जो है ना एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम ब्लैक लिस्ट कह रहे हैं। ताहा सर इज गोइंग टू आने वाली थी हाँ। ब्लैक लिस्ट, व्हाट इज दैट? So Blacklist, inspired by the show, of course, but Have you seen all the seasons? all the seasons. Okay. I'm all I caught up. I'm all I caught up. But the blacklist का process ये है कि जो छोटे petty crimes हैं, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पे आप बस रिपोर्ट करते हैं। अभी क्या होता है, वेरियस फेसबुक ग्रुप पे जो है, इस फेसबुक ग्रुप पे इस मासी ने ये चोरी कर दी, जी, तो जी। इसने ये चोरी कर, तस्वीर डल गई, बट वो आप डेटा जो है सर्च नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हम जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। विच वी विल गिव एंड मेक अवेलेबल फॉर एवरीवन, कि भाई आप जो है इस पर डेटा डाल दें, ठीक है। अब वेरिफिकेशन उस पर कैसे होती है, क्या होना है, वो हम आगे जाके करते रहेंगे। सो एक चीज़ इसके अंदर बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को, बहुत लोगों को एक थॉट ये आती है कि यार कोई अगर चाहे तो वो आउट ऑफ रिवेंज या आउट ऑफ हरासमेंट भी उसके अंदर डाल सकते हैं। लोग, ये हम लोग सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए एक चीज़ बना रहे हैं। ये ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है कि अगर ये रेड फ्लैग आया हुआ है तो आप खुद इंटरव्यू के अंदर पूछें कि ये हुआ क्या था। बिल्कुल। इससे ज़्यादा वहाँ ये से बात क्यों नहीं तुम हटे या क्या? करेक्ट। बट अगर काम होगा कि आपको बता दें ये रेड फ्लैग रेज हुआ है। हाँ, ठीक। दैट्स एसेंशियली। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस ऐप Thank एंड you so डाउनलोड करें इस ऐप को। एक चीज़ जो मैं चाहूँगी यहाँ मेंशन करना, मेरी स्ट्रीट है, कहीं भी है, पूरी दुनिया में डोमेस्टिक स्टाफ को हायर किया जाता है। देयर इज़ एन ऐप, आप इसको जाके इस पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक और ख़वातीन की बड़ी गलती है। एक घर से अगर कोई निकल गया है, खुदा के वास्ते सिर्फ अपने काम के लिए, कि उसको दोबारा आप लोग उसी गली में रख लेते हैं कि नहीं नहीं वो बाजी, और वो 3 बातें कहते जी बाजी तो है कह रही सी, बाजी तो है कह रही सी, मेरे नाल चंगी नहीं सी, तो उसको रख लिया जाता है। ये गलत है, आप ये ना करें। अगर वो एक घर में आ रही है और झूठ बोल रही है कि मैं छुट्टी पे गई हूँ, ये ना करें। मैं इसको भुगत चुकी हूँ और हमने सब ने मिलके उस मासी को ब्लैक लिस्ट किया पूरी लेन में, बिकॉज वो झूठ बोलती थी और कहीं से कुछ उठा लिया, कुछ कर लिया, तो हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो एक कम्युनिटी बने अपनी स्ट्रीट में, ताकि किसी को मौका ही ना मिले ये सब करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।